Assalamu alaikum 10th class. I hope that all of you are doing well. Most welcome to the new class. I am your chemistry teacher, Ms. Natasha Kadir. So let's begin our today's lecture. Our today's lecture is reversible and irreversible reactions. First of all, we have to discuss about irreversible reactions. In a chemical reaction, the substance that combine are called reactants and the new substance formed are called products. So केमिकल रिएक्शन में जो स्पीशीज़ कंबाइन करती हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं एंड द न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उनको हम न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं फॉर एग्जांपल इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन are the reactants whereas water is a product. Irreversible reactions. Most of the reactions in which the product do not recombine to form reactants are called irreversible reactions. They are supposed to complete and never represented by putting a single arrow between the reactants and product. इरिवर्सिबल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट्स वो टोटली प्रोडक्ट्स बना देते हैं ठीक है 2 number of moles or 3 number of moles are converting into 3 number of moles or 2 number of moles मीन कि उनके बैलेंस केमिकल इक्वेशन में भी नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेम होते हैं और ऐसे रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं यानी वो मूव बैक नहीं करते लाइक फॉर्मेशन ऑफ वाटर में हमने कभी नहीं देखा कि वाटर जो हमारे पास अगर किसी ग्लास में किसी टब में प्रेजेंट है तो वो अगेन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे रिएक्शंस जो कंप्लीट हो जाते हैं जिनके रिएक्टेंट्स जो है वो टोटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर जाते हैं और वो रिएक्शन जो है वो टोटली कंप्लीट हो जाते हैं ऐसे रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं ऑन द अदर हैंड रिवर्सिबल रिएक्शंस The reversible reaction in which the product can recombine to form reactants are called reversible reactions. These reactions never go to completion. They are represented by double arrow between reactants and products. So reversible reactions जो हैं वो move back कर सकते हैं ठीक है They can either move from forward reaction to reverse reaction and reverse reaction to the forward reaction and they are represented by double arrowhead as indicated in the picture. A and B are the reactant species combine कर रही हैं and the forming new substances known as products and the double arrowhead is utilized to represent the reversible reactions. These reactions proceed in both ways. They consist of two reactions, forward reaction and reverse reaction. So forward reaction में क्या होता है A and B sum up करते हैं और form करते हैं C and D. This is forward reaction. Forward reaction में हो रहा है ये ठीक है So a reversible reaction is one which can made be proceed in either direction depending upon the condition. So C and D क्या करेंगे अगेन रिएक्ट करेंगे और आपके पास A एंड B बना देंगे और इसको हम रिवर्स रिएक्शन कहेंगे और डायरेक्शन डिपेंड करती है किस पे रिएक्शन पे कि रिएक्शन जो है वो C और D से स्टार्ट हुआ है और रिएक्शन जो है वो A और B से स्टार्ट हुआ है ऐसा भी हो सकता है कि C और D जो है वो रिएक्टेंट्स हों और ऐसा भी हो सकता है कि A एंड B एक्ट लाइक अ प्रोडक्ट्स Let us discuss a reaction between hydrogen and iodine. हम एक फर्दर डिटेल में एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोजन एंड आयोडीन की Because of the reactants iodine is purple while the product hydrogen iodide is colorless. हाइड्रोजन और आयोडीन में से हाइड्रोजन जो है वो आपके पास पर्पल कलर की है और हाइड्रोजन आयोडाइड जो उसका प्रोडक्ट है वो कलरलेस है On heating hydrogen and iodine vapors in closed flask, hydrogen iodide is formed. और जब हम एक फ्लास्क लेते हैं और उसमें हम हाइड्रोजन और आयोडीन को
हीट अप करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड आता है और उसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन रिएक्टेंट्स में आयोडीन का कलर पर्पल था। As a result, purple color of iodine fades and it reacts to form colorless hydrogen iodide. This reaction is called Fowler reaction. और ये रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन आयोडीन के साथ कंबाइन हुई है और हाइड्रोजन आयोडाइड में है, इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। और अगर आप जस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन को इंडिकेट कर रहे हो तो आप सिंगल एरो हेड से उसको रिप्रेजेंट करोगे। On the other hand, when only hydrogen iodide is heated in a closed flask, purple color because of formation of iodine vapors। और अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें, हम क्या करें, हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट अप करें तो हमारे पास अगेन हाइड्रोजन एंड आयोडीन की फॉर्मेशन हो जाएगी और दिस टाइम जो पर्पल कलर ऑफ आयोडीन था वो अगेन जो है आपको शो होगा कि हाइड्रोजन आयोडीन जो है वो पर्पल कलर की है फ्लास्क के अंदर। In this case, hydrogen iodide act as a reactant and proceed hydrogen and iodine vapors। और इस केस में आपके पास क्या हुआ है कि हाइड्रोजन आयोडाइड ने हाइड्रोजन एंड आयोडीन के वेपर्स फॉर्म कर दिए। This reaction is reverse of the above, therefore it is called reversible reaction, reverse reaction। So आपके पास क्या है कि जो above हमने रिएक्शन पढ़ा उसमें हमने कहा था हाइड्रोजन एंड आयोडीन फॉर्मिंग हाइड्रोजन आयोडाइड, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड को हीटअप किया और हाइड्रोजन और आयोडीन अगेन बने हैं और आयोडीन का कलर भी वापस आया है, तो इस रिएक्शन को हम रिवर्स रिएक्शन कहेंगे क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन में हो रहा है। Reversible reactions, when both of these reactions are written together as reversible reaction, they are represented as। जब आप फॉरवर्ड रिएक्शन को भी इंडिकेट कर रहे हो और रिवर्स रिएक्शन को भी इंडिकेट कर रहे हो तो आप डबल एरो हेड यूज़ करोगे। फर्स्ट एरो जो अपर साइड पे है वो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन को शो ऑफ करेगा और सेकंड एरो हेड वो आपका रिवर्स रिएक्शन को शो करेगा। और हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस है और आयोडीन गैस है, कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस बनेगी। यहाँ पे आयोडीन का कलर पर्पल होगा, बट जब इनकी डिकम्पोजिशन करवाई जाएगी, जब इसी क्लोज्ड फ्लास्क को हमने जो सिस्टम सेटअप लगाया है, जब हम इसको हीट अप करेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड अगेन हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैस में डिकम्पोज हो जाएगी और अगेन आपके पास आयोडीन का कलर पर्पल आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।